کہا ہو سکتا ہے اب وہ ڈاک بنگلہ ڈاکوؤں کا ٹھکانہ بن چکا ہو اور وہ وہیں سے وارداتیں کرنے نکلتے ہیں۔ جیپ رینگنے کے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس دوران میں ریوالور میری گود میں تھا کہ میری آنکھیں آس پاس کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔ کئی منٹوں تک گہری نظروں سے ڈاک بنگلے کے عقبی رخ کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اپنی تمام کاوشیں اور احتیاطیں بے سود لگیں۔ وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ان لٹیروں نے بے شک تاوان ملنے پر امردیپ اور مانو کو چھوڑ دینے کا یقین دلایا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں مطمئن نہیں تھا۔ ان بد کردار لفنگوں کی زبان کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے رقم ملنے کے بعد ان کا لالچ مزید بڑھ جائے اور ان دونوں کو آزاد کرنے کی بجائے یہ مزید تاوان کا مطالبہ کر دیں۔ اس سے بھی زیادہ سنگین خطرہ یہ ہے کہ ان کی بدنیتی واضح ہونے پر کہیں امردیپ مزاحمت پر نہ اتر آئے۔ یہ خطرناک لٹیرے اسے گولی کا نشانہ بنانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ تبھی ایک اور بھیانک خیال نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ ان کے قبضے سے چھوٹ کر آنے کے باوجود امردیپ ان کے لیے ایک مسلسل خطرہ بن جائے گا۔ وہ ان کی نشاندہی کر کے انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتا ہے۔ ان لٹیروں کے لیے چند روپوں کی گولی خرچ کر کے اس خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا زیادہ آسان ہے۔ ہو سکتا ہے بھاری رقم وصول کرنے کے بعد وہ کل مجھے بھی اسی انجام سے دوچار کرنے کا ارادہ کیے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں امردیپ اور مانو کو ساتھ لے کر حویلی واپس جاؤں گا، چاہے انہیں آزاد کروانے کے لیے مجھے جان کی قربانی دینی پڑے۔ وہ لٹیرے دو تھے اور آتشی ہتھیاروں سے مسلح بھی، لیکن میں بھی خالی ہاتھ نہیں تھا۔ میں جیپ بھگا کر انہیں پکڑ سکتا ہوں۔ یہ بات میرے حق میں جاتی ہے کہ وہ دونوں ایک گھوڑے پر تھے اور امردیپ مانو سمیت دوسرے گھوڑے پر۔ میں موقع ملنے پر دونوں لٹیروں کو ایک ساتھ ڈھیر کر سکتا ہوں، جبکہ امردیپ اور مانو دونوں طرف سے گولیاں چلنے کے باوجود خطرے کی زد سے محفوظ رہتے۔ مجھے تنگ راستے پر جیپ واپسی کے راستے پر موڑنے میں کچھ وقت لگ گیا، لیکن مجھے پوری امید تھی کہ وہ لوگ میری پہنچ سے باہر نہیں ہوئے ہیں، خصوصاً ایسی صورت میں کہ دونوں لٹیرے امردیپ کو گھوڑا بھگا کر فاصلہ بڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دور سے دونوں گھوڑوں کی جھلک ملتے ہی جیپ کی رفتار کم کر لوں گا اور فاصلہ رکھ کر پیچھا کرتا رہوں گا۔ اگر راستے میں لٹیروں کو مار گرانے کا مناسب موقع ملا تو حسب موقع کارروائی کرتے ہوئے انہیں مار گراؤں گا، ورنہ تعاقب کرتے ہوئے ان لٹیروں کے ٹھکانے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اور پھر ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی گردن دبوچ لوں گا۔ میں نے احتیاطاً ہیڈ لائٹس بند کرنے کے باوجود جیپ کی رفتار حد الامکان تیز رکھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ پورے چاند کی رات میں حد نگاہ خاصی دور تک کام کر رہی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ یہ سڑک لگ بھگ 1 میل آگے جا کر دائیں طرف مڑے گی اور پھر ایک چھوٹی نہر کے پل پر سے گزرے گی۔ میری خواہش تھی اس پل کے آنے سے پہلے دونوں گھوڑے میری نظروں میں آ جائیں، لیکن جب میں اس موڑ پر پہنچا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہاں سے ایک نیم پختہ راستہ بھی تھا اور ایک سڑک سیدھی بھی جا رہی تھی۔ لہٰذا میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ نہر کے پل کی طرف جاؤں یا جیپ کو اس نیم پختہ سڑک پر سیدھا بڑھاتا لے جاؤں۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے میں نے موڑ پر جیپ روک کر ہیڈ لائٹس روشن کر دی۔ میں نے اتر کر ہیڈ لائٹ کی روشنی میں نیم پختہ سڑک کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ میں کوشش کے باوجود گھوڑوں کے سموں کے بالکل واضح نشانات تلاش نہ کر سکا، لیکن مجھے لگا کہ یہاں فضا میں کچھ گرد پھیلی ہوئی ہے۔ بالآخر میں نے اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے ہیڈ لائٹس ایک بار پھر بند کر کے جیپ اس نیم پختہ سڑک پر ڈال دی۔ میری آنکھیں بے تابی سے دونوں گھوڑے تلاش کر رہی تھیں، لیکن ان کا کہیں نشان نظر نہ آیا۔ لگ بھگ 2 میل بعد وہ نیم پختہ سڑک کچے راستے میں تبدیل ہو گئی اور رفتہ رفتہ بائیں طرف گھومنے لگی۔ کچا راستہ آنے پر میں نے ایک بار پھر ہیڈ لائٹس روشن کی اور جھک کر مٹی اور کنکر والے راستے پر سموں کے نشان تلاش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ وہاں گھوڑوں کے سموں کے علاوہ کئی طرح کے مویشیوں کے کھروں کے نشانات کی بہتات تھی، لیکن ساتھ ساتھ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہی نہیں، بدقسمتی سے میں نئے اور پرانے نشانات میں امتیاز کرنے کی مہارت بھی کہاں رکھتا تھا۔ چنانچہ میری یہ جستجو رائیگاں گئی۔ مایوس ہو کر میں دوبارہ جیپ میں آ کر بیٹھا اور ایک بار پھر کچے راستے پر آگے بڑھنے لگا، جو رفتہ رفتہ مزید غیر ہموار اور کڈھب ہوتا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی چوڑائی بھی کم ہو رہی تھی۔ میں زیادہ آگے نہ جا سکا۔ راستہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ جیپ کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی اور اس کے کسی بھی وقت الٹنے کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف میری یہ امید بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمزور پڑتی جا رہی تھی کہ میں درست راستے پر جا رہا ہوں اور جلد ہی گھوڑوں کو ڈھونڈ نکالوں گا۔
बिलाखिर मुझे इस फैसले पर पहुंचना पड़ा कि मेरी ये कोशिश रायगां गई है और हाँ मैं वाकई उन घोड़ों का ताक़ुब कर रहा हूँ। मेरे लिए अब मजीद आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। पूरी तरह मायूस होने के बाद मैंने बमुश्किल जीप वापस मोड़ी और उसी उबड़ खाबड़ रास्ते से वापस हो लिया। गालिबन उम्मीद टूटने की वजह से वापसी का सफर कुछ ज्यादा ही तवील और बेजार कुन महसूस हुआ। साथ ही ये एहसास भी सुहाने रूह बना हुआ था कि अमरदीप और मानू हर गुजरते लम्हे के साथ मुझसे दूर और पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। शायद अब उन्हें अगवा करने वालों के हुक्म की तामील के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। शायद अब मुझे बादल नखास्ता शिकस्त खुर्दगी के आलम में मुंह लटकाए हवेली का रुख करना पड़ेगा। मुझ पर बददिली तारी थी, लेकिन पक्की सड़क पर वापस पहुंचने पर मेरी हिम्मत और हौसला एक बार अंगड़ाई लेकर बेदार हो गए। मेरे पास अभी डोर का एक सिरा मौजूद है। उन बदमाशों ने मुझे रकम लेकर गुरदयालपुर के जंगल पहुंचने का हुक्म दिया है। इसका मतलब है कि वो उसी तरफ गए होंगे। मैं मकामी लोगों से उस जंगल का पता पूछकर इन अगवा कुनंदगान के पीछे पीछे वहां पहुंच जाऊंगा। नहर का पुल पार करने के बाद मैंने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। लगभग 5 मील पीछे हम एक अच्छे खासे बड़े गांव के पास से गुजरे। उम्मीद है वहां से मुझे अपनी मंजिल का कुछ अता पता जरूर मिल जाएगा। देही इलाकों में तो वैसे भी लोग रात गहरी होने से पहले ही बिस्तर संभाल लेते हैं, तो मौसम सरमा की उस रात मुझे उस गांव के गली कूचों में चहल पहल कैसे मिलती। मुझे जीप खड़ी करके ढूंढना पड़ी। बिलाखिर एक छोटी सी चौपाल में मुझे 4 देहाती चौपड़ मिल गए। मैंने गर्मजोशी से उन्हें सत श्री अकाल कहा। उन सब ने कदरे ताज्जुब के साथ मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर उनमें से सबसे मोतबर और मुख्तदर दिखाई देने वाले शख्स ने मेरे हुलिये के पेश नजर ठेठ पंजाबी लहजे वाली हिंदी में मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने उसका कयास दुरुस्त साबित करने के लिए उर्दू में कहा, दरअसल मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप लोगों से रहनुमाई दरकार है। उसी शख्स ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम महमूदुल हसन है और मैं करनाल से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे मेरे कॉलेज के दोस्तों जसपिंदर बाली और परमजोत सिन्हा ने नील गाय के शिकार के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे गुरदयालपुर के जंगल का रास्ता समझाया था, लेकिन मैं शायद जीप पर पटियाले से निकलने के बाद कोई गलत मोड़ मुड़ गया। मुझे डर है कि मैं सही रास्ते से दूर होता जा रहा हूँ। वो बोला, गुरदयालपुर का जंगल? उसने कुछ हैरान और कुछ सवालिया लहजे में दोहराकर अपने साथियों की तरफ देखा, फिर जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया, आपके साथ और कौन कौन है? मैंने कहा, मैं अकेला हूँ। आपने ये सवाल क्यों किया? उसने गोया इस तरफ से पहलू बदलते हुए इस्तफसार किया, अकेले हो? आपको शायद पता नहीं, गुरदयालपुर जंगल शिकार से ज्यादा डाकुओं का अड्डा होने की वजह से मशहूर है। वो आपसे जीप समेत सब कुछ छीन कर जान से मार देंगे और फिर गीदड़ और लूमड़ कई दिन आपकी लाश पर दावत उड़ाएंगे। मैंने देखा कि उसके तीनों साथियों ने जोर जोर से गर्दन हिलाकर उसकी तायद की है। मैंने उसकी बात गौर से सुनी और फिर अपने लहजे में तशवीश भरते हुए कहा, ये तो बहुत खतरनाक बात है, लेकिन मुझे गुरदयालपुर तो पहुंचना ही है। मेरे दोस्त वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो जौहड़ के पास खैमा लगाकर मेरा इंतजार करेंगे। मेरी बात सुनकर उन चारों में से एक और ने पुरजोश लहजे में सवाल किया, जौहड़? अच्छा, तो ये बात है, आपके दोस्त जंगल में नहीं हैं, गुरदयालपुर बस्ती में आपका इंतजार कर रहे हैं। जौहड़ जंगल में नहीं, बस्ती के बाहर है। उसने महज अंदाजे से जो नतीजा अखज किया वो मेरे मकसद के लिए फायदेमंद था। चुनाचे मैंने उसकी बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा, क्या गुरदयालपुर नाम की कोई बस्ती भी है? मैं तो समझा था कि गुरदयालपुर जंगल ही का नाम है। मेरी बात सुनकर उनमें से प्रधान की जिम्मेदारी निभाने वाले शख्स ने निस्बतन मुतमईन लहजे में कहा, गुरदयालपुर बस्ती में जाना इतना खतरनाक नहीं है। मेरा ख्याल है आपके दोस्त दिन के वक्त शिकार के लिए निकलेंगे, सूरज चढ़ने के बाद वहां जाने में खतरा कम होता है। मैंने कहा, हाँ, हम सुबह सवेरे निकलेंगे। वैसे भी हम खाली हाथ नहीं हैं, सातों बंदों के पास बंदूकें और तमंचे हैं। प्रधान जी अब पूरी तरह मुतमईन दिखाई दे रहे थे। बोले, फिर तो ठीक है, आप रात के वक्त अकेले जाते तो बहुत बुरा हशर होता। मैंने कहा, तो मेहरबानी करके कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास गुरदयालपुर बस्ती पहुंच जाऊं। इस पर प्रधान जी ने फर्श पर बिछे नमदे पर उंगली से फर्जी लकीरें खींचते हुए रहनुमाई शुरू की। बोले, आप यहाँ से सड़क पर 2 मील सीधे चलेंगे तो सीधे हाथ पर ढालीवाल पिंड आएगा। वहाँ से 3 मील आगे आपको भिंडर बस्ती मिलेगी। 1-1, 2-2 मील के फासले पर 2-3 छोटी बड़ी बस्तियां और आएंगी, लेकिन आप सीधे चलते जाना। 11-12 मील का फासला तय करेंगे तो सड़क बादशाहपुर कस्बे से गुजरेगी। जरूरत हो तो वहाँ से आपको जीप के लिए तेल भी मिल जाएगा। वो सोचने के लिए एक लम्हा रुका, फिर बात आगे बढ़ाई।
बोला वहां से 3 मील आगे आप एक और कस्बे ननेरा के पास से गुजरेंगे। ये गुरदयालपुर से पहले आखिरी बड़ी आबादी है। यही इलाके की वाहिद पुलिस चौकी भी है, लेकिन वहां नफरी और हथियार न होने के बराबर हैं, इसलिए रात को गश्त नहीं होता और इर्द गिर्द के इलाकों पर डाकुओं का राज रहता है। इस मौके पर उसके एक साथी ने बातचीत की बाग अपने हाथ में लेते हुए कहा, ननेरा से गुरदयालपुर तक की सड़क की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन रफ्तार हल्की न रखना। 2 मील आगे बढ़ते ही सीधे हाथ पर गुरदयालपुर का जंगल शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो सड़क सीधे हाथ मुड़कर 1 मील आगे गुरदयालपुर बस्ती पहुंच जाएगी। आप बस्ती को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाना। बस्ती की हद खत्म होने के बाद एक कच्ची सड़क उल्टे हाथ पर मुड़ेगी। आप उस पर जीप मोड़ लेना। 1.5 फरलांग के बाद फिर एक कच्चा रास्ता सीधे हाथ पर मुड़ेगा जो आपको सीधा जौहड़ पर ले जाएगा। इस मौके पर प्रधान ने मुदाखलत की। बोला, ये ख्याल रखना कि गुरदयालपुर बस्ती तक जंगल मुसलसल आपके सीधे हाथ पर चलेगा, लेकिन एक नहर भी जंगल के साथ साथ आगे बढ़ रही होगी जो एक तरह से हदबंदी का काम करती है। अगर आप जौहड़ वाले कच्चे रास्ते पर न मुड़ें तो उसी रोड पर 3 फरलांग आगे सीधे हाथ पर चलती नहर पर एक पुल आएगा। उसे पार करते ही एक कच्चे रास्ते पर चलते हुए जंगल में दाखिल हो जाएंगे। शुरू में जंगल कम घना है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के एक डाक बंगले के पास से गुजरते ही जंगल एकदम घना हो जाता है और एक तरह से डाकुओं का इलाका शुरू हो जाता है। इसलिए रात के वक्त नहर का पुल पार करना खतरनाक समझा जाता है। मैं ये तमाम बातें ज़हन नशीन कर रहा था। मैंने पूछा, क्या उस डाक बंगले में सरकारी अमला नहीं होता? प्रधान जी ने नफी में सर हिलाया। बोले, ये डाक बंगला पटियाले के महाराजा भूपिंदर सिंह ने अंग्रेजों के जमाने में बनवाया था। उस जमाने में उस जंगल में शेर चीते भी होते थे और महाराजा दोस्त रियासतों के राजों नवाबों और अंग्रेज हुक्मरानों को शिकार करवाने यहाँ लाता था और उस डाक बंगले में कयाम होता था। फिर यहाँ रफ्ता रफ्ता शेर चीते भी खत्म हो गए और अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान पर अपना राज बचाने की फिक्र पड़ गई। यूं रफ्ता रफ्ता ये डाक बंगला वीरान हो गया। अब यहाँ खस्ता हाल इमारत तो मौजूद है, लेकिन अब शायद वहाँ भूत ही बसते होंगे। मैंने ये सुनकर अंधेरे में तीर चलाया। कहा, हो सकता है अब वो डाक बंगला डाकुओं का ठिकाना बन चुका हो और वो वहीं से वारदातें करने निकलते हों। प्रधान ने कंधे उचकाकर लाइल्मी जाहिर की। बोला, वाहे गुरु ही जानता है, हो सकता है उसे वो जरूरत पड़ने पर ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हों। किसमें इतनी हिम्मत है कि रात के वक्त वहां जाकर पता लगाए? प्रधान के एक साथी ने लुकमा दिया। कहा, भाई, डाकुओं के ये गिरोह कोई विलायत से थोड़ी आए हैं। लगभग सब आसपास की बस्तियों और पिंडों से ताल्लुक रखते हैं। उनका जंगल में मुस्तकिल ठिकाना थोड़ी होता है। मिलकर डाका डालने का मंसूबा बनाते हैं और जंगल में रूपोश हो जाते हैं। फिर हिस्से बखरे करने के बाद एक एक करके अपने घरों को चले जाते हैं। मैंने उनकी फराहम करदा मालूमात में दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, आपके ख्याल में इस जंगल को डाकुओं के कितने गिरोह अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाए हुए हैं? मेरी बात का जवाब प्रधान जी ने दिया। कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 या 4। उन्होंने शायद जंगल में अपने अपने हिस्से बांट रखे हैं। जंगल के पीछे घग्गर दरिया बहता है, उसी के किनारे किनारे उनके घास फूस के झोंपड़ों पर मुश्तमिल ठिकानों की मौजूदगी का ज्यादा इम्कान है। मैंने उनसे मजीद मालूमात उगलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई काम की बात मालूम न हो सकी। मैंने रास्ते की मजीद तस्दीक करने के बाद सवाल किया, आपने जो कुछ बताया उसकी रोशनी में तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में गुरदयालपुर पहुंच जाना चाहिए। प्रधान ने कहा, अगर आपकी जीप जानदार है और आप बेढब रास्तों पर गाड़ी चलाने में महारत रखते हैं तो जल्दी भी पहुंच सकते हैं। मैंने गर्मजोशी से उनका शुक्रिया अदा किया और इजाजत तलब की। उनकी तरफ से चाय की पेशकश ठुकरा कर मैं उनकी महफिल से निकला तो ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम महसूस हुई। ताहम हस्बे तवक्को जीप पहली ही कोशिश में जाग उठी और मैं हत्तुल इम्कान तेजी से उन देहातियों के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ गया। पहले ढालीवाल और फिर भिंडर बस्ती को पीछे छोड़ते हुए मेरी जीप टूटी फूटी सड़क पर तेजी से मुसाफत तय कर रही थी। बादशाहपुर कस्बा मेरे अंदाजे से बड़ा साबित हुआ। वहाँ जिंदगी पूरी तरह महवे ख्वाब नहीं हुई थी। इक्का दुक्का दुकानें भी खुली दिखाई दी, लेकिन मैं रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया। अमरदीप ने पटियाला से रवाना होते हुए जीप की टैंकी फुल करवाई थी, लिहाजा ईंधन लेने की भी जरूरत नहीं थी। बादशाहपुर से ननेरा कस्बे तक का फासला मैंने लगभग 10 मिनट में तय किया। सड़क से कदरे हटकर वाकई ये कस्बा निस्बतन छोटा था। सड़क के किनारे कुछ दुकानें मौजूद थीं, लेकिन उस वक्त सब बंद दिखाई दी। देहातियों के बयान के ऐन मुताबिक ननेरा से निकलते ही सड़क एक नीम पुख्ता रास्ते की शक्ल इख्तियार कर गई और फिर एक नहर और उसकी दूसरी तरफ घना जंगल मेरे साथ साथ चलने लगा। चांदनी अभी तक रास्ता दिखा रही थी, लेकिन मैंने जीप की हेडलाइट्स बंद न की। अलबत्ता मैं पूरी तरह मोहतात हो चुका था।
सिर्फ बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों के लिए मौजू रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुझे अपने बाएं तरफ सड़क किनारे शायद चंद 100 घरों पर मुश्तमिल एक गांव नजर आया, जो यकीनन गुरदयालपुर ही रहा होगा। रात दूसरे पहर में आगे बढ़ रही थी, इसलिए उस वक्त वहां कोई जीरूह दिखाई न दी। जौहड़ की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता आते ही मैंने जीप की हेडलाइट्स बंद कर दी। इब्तिदा में सब कुछ तारीकी में डूबा महसूस हुआ, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मेरी आंखें चांदनी से हम आहंग हो गईं। मैंने जीप की रफ्तार हल्की कर दी थी, उसके बावजूद इंजन की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती महसूस हुई। मुझे रास्ते के खद्दोखाल तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन दाएं तरफ चलता जंगल मुहीब स्याह हयूलों का मजमुआ नजर आ रहा था। मुझे दाएं तरफ जंगल में दाखिल होने वाला कच्चा रास्ता और चंद ही गज आगे वाक़े पुल बमुश्किल दिखाई दिया। मैं इस तमाम सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था, लेकिन जीप पुल की तरफ मोड़ते हुए मेरा दिल बुरी तरह धड़का। ये घना जंगल मेरे लिए बिल्कुल अनजाना है, जहाँ किसी भी कदम पर मौत के हरकारे मेरे मुंतजिर हो सकते हैं। वो यकीनन बहुत पहले मुझे देख लेंगे और बिला चूं चरा गोलियों की बौछार करके मुझे मौत के घाट उतार देंगे। वो इतनी रात गए जंगल में बेदरेग घुसने वाले को अपना दोस्त तो हरगिज नहीं समझेंगे। जंगल में दाखिल होते ही अंधेरा अचानक बहुत गहरा हो गया। दरख्तों से छन छन कराने वाली चांदनी में रास्ते का खाका तो दिखाई दे रहा था, रास्ते से हटकर चंद फुट के फासले पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जीप रेंगने के अंदाज में आगे बढ़ रही थी। इस दौरान में रिवॉल्वर मेरी गोद में था कि मेरी आंखें आसपास का गहरी नजरों से जायजा ले रही थी। मुझे फराहम शुदा मालूमात के मुताबिक उस रास्ते पर 2 फरलांग बाद दाएं तरफ डाक बंगला आने वाला था। अंदाजन 1 फरलांग आगे बढ़ने के बाद ही मैंने जीप की रफ्तार मजीद कम कर दी और अपनी नजरें दाएं तरफ जमा दी। मुझे लगा कि 100 गज आगे दरख्त अचानक पीछे हटते हुए गायब हो रहे हैं और खुले मैदान जैसी जगह सामने आ रही है। मैंने फौरन जीप दाएं तरफ दरख्तों के एक झुंड के दरमियान घुमाई और इंजन बंद कर दिया। अपना रिवॉल्वर दाएं हाथ में थामते हुए नपे तुले कदमों से खुले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। मैं कच्चे रास्ते के किनारे दरख्तों के तारीक साए में रहते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ा फासला तय करते ही चांदनी ने एक बड़ी सी इमारत के खद्दोखाल वाजे कर दिए। मैंने अपना हिजान कम करने के लिए एक गहरा सांस लिया। इस दौरान में हर कदम के साथ मैं दुआएं भी कर रहा था कि मैंने अपना दिमाग लड़ाने के बाद जो अंदाजा कायम किया था वो दुरुस्त साबित हुआ कि ये डाक बंगला दरअसल डाकू बंगले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना मेरी मुहिम बेहद कठिन हो जाएगी और अमरदीप और मानू की बाजियाबी के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। खुली जगह के किनारे दरख्तों की आखिरी कतारों के नीचे छुपकर मैं डाक बंगले का गहरी नजरों से जायजा ले रहा था। मेरी आंखें इमारत में रोशनी की कोई झलक तलाश कर रही थीं, जो वहां इंसानों की मौजूदगी की अलामत होती, लेकिन मेरी ये कोशिश नाकाम रही। ताहम इतनी जल्दी मायूस होना मेरी फितरत के खिलाफ था। मेरे पास अब इसके अलावा रास्ता नहीं बचा था कि डाक बंगले में घुसकर अपने कयास की तस्दीक या तरदीद करूं, लेकिन मैं इमारत के सामने मौजूद खुला मैदान पार करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। चांदनी में वो मुझे दूर ही से देख लेते और फिर बड़े इत्मीनान से मुझ पर निशानेबाजी की मशक करते, लिहाजा मैं दरख्तों के दरमियान से दायरा बनाते हुए डाक बंगले के अकब की तरफ बढ़ने लगा। ये कोई आसान काम नहीं था। बार बार खारदार झाड़ियां जिस्म पर खराशें डाल रही थीं, ठोकरें लग रही थीं। राह मसदूद होने की वजह से चक्कर काट कर अंधेरे में टटोलने के अंदाज में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन मैंने रफ्तार हद्दुल इम्कान तेज रखी। बिलाखिर मैं अपने अंदाजे के मुताबिक डाक बंगले के अकब में पहुंच गया। मैं हद्दुल इम्कान एहतियात से बेआवाज कदमों के साथ दरख्तों के दरमियान से आगे बढ़ने लगा। लकड़ी के लट्ठों की एक अधूरी टूटी फूटी बाड़ सामने देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है। मैंने बाड़ के पास पहुंचकर अंदर का जायजा लिया तो ऐसे कतई राजी ने इस्तकबाल किया जो कभी अकबी बागीचा रहा होगा। सामने डाक बंगले के कमरों के 3 दरवाजे थे, उनमें से 2 बंद थे और एक नीमवा था। उन दरवाजों तक पहुंचने के लिए 30-40 गज का ये फासला मुझे चांदनी में देखे जाने का खतरा मोल लेते हुए तय करना था। कई मिनटों तक गहरी नजरों से डाक बंगले के अकबी रुख का जायजा लेने के बाद मुझे अपनी तमाम काविशें और एहतियातें बेसूद लगीं। वहां जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। मेरा यह कयास शायद वाकई ख्याली पुलाव के मुतरादिफ था कि लुटेरे उन ताया भतीजों को अगवा करके इसी डाक बंगले में लाए होंगे। अगर वो कई घंटे पहले इसी जंगल में आए भी थे तो उन्होंने गालिबन घग्गर दरिया के किनारे घने जंगल यानी महफूज इलाके में वाक़े अपने ठिकाने पर ले जाकर उन्हें कैद कर दिया था, जहां पहुंचना फिलहाल मेरे लिए मुमकिन नहीं था।